right? So guys, let's have a quick revision, quick go through what we have covered in last lecture. Press 3. Yes, so we have started range of a quadratic, correct? And next, so the very definition of range says that it is nothing but the collection of outputs, values of y for the corresponding values of x. We know it, it's very simple. Next, the method we choose to find the range of quadratic was by plotting its graph, right? And, no. Today you will not be able to unmute again. The problem is I forgot my headphone, so okay, yeah. So the method we chose to find the range is by plotting the graph of quadratic, because we are well aware of the method. We know that graph of a quadratic is a parabola, and once we have its vertex, we have its minimum value or maximum value. Next, ये एग्जाम्पल था हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. साफ पता दिख रहा है हमको कि 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है y एक्सिस पर एंड इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट. Yes, so now in the next step we try to derive a formula to find the range of quadratic. Yes, तो range of quadratic find करने का method अगर कोई formula मिल जाए तो फिर हम केवल values plug in करेंगे and we'll get our answer. So in the next slide, yes, so we made some cases. Why we had to form some cases? The reason was, भाई कोई पैराबोला अगर हेडिंग अपवर्ड है, राइट, तो हेडिंग अपवर्ड अगर वो पैराबोला है तो उसकी मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे आएगी, और अगर वो पैराबोला हेडिंग डाउनवर्ड है तो ऑब्वियसली उसकी मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पे आएगी. दैट्स व्हाई वी फॉर्म सम केसेस. सो फर्स्ट केस, व्हेन ए इज पॉजिटिव, क्लियरली वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो उसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए. सो इन दिस केस द फॉर्मूला वाज, नेक्स्ट स्लाइड, it was minus d by 4a to infinity, right? There is disturbance, we cannot hear you. I don't think you are able to unmute yourself. Okay, wait. But how can anybody speak? Wait. Avnish, okay, understood. But Avnish is mute. Avnish, you're... I know. It is okay now? It is okay. Okay, ठीक है. म्यूट कर लो दोस्तों, डिस्टर्बेंस होता है यार. चलो ठीक है. Okay. So, this was the first case, right? When a was positive, minimum value is minus d by 4a, maximum is infinity. Next slide. Yes, when a is negative, the formula changes to minus infinity to minus d by 4a, right? Next, we took some examples. Next. I think this was the incorrect answer. Answer was actually minus 9 by 8, right? And we solved these problems. We got our answers. Next slide. Yes, keep moving. Yes. And then came the second part. In the second part, there was a restriction in the domain part, right? We cannot have all possible values of x. That is, it is not x belongs to R. This time we have x belongs to P by Q. So, what was important here? We needed to check कि भाई vertex कहाँ पर है, क्योंकि अगर vertex नहीं मिलेगा, vertex को हम ignore कर देंगे. Yes, so we are ignoring a very important point, because it is the point where
the parabola achieves its minimum or maximum value. So in the next slide, you will see case 1, sub case 1, if minus b by 2a belongs to p to q. That means vertex lies in the restricted domain. और जैसे ही vertex domain के अंदर आया, तो भाई ये पॉइंट क्लियर हो गया कि क्योंकि वर्टेक्स डोमेन के अंदर आ रहा है, केस 1 हेडिंग अपवर्ड है, तो मिनिमम वैल्यू तो वही होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन बी फाउंड एट वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, राइट. नेक्स्ट, सिमिलरली इफ वर्टेक्स डज नॉट लाई, तो वर्टेक्स अगर आया ही नहीं तो अब माइनस डी बाई 4 पिक्चर से बाहर हो गया और बस हम एक्सट्रीमिटीज पर वैल्यूज फाइंड कर लेंगे एंड विल गेट आवर आंसर. नेक्स्ट, वी टुक सम एग्जांपल. नेक्स्ट, एंड सिमिलरली केस 2, यू नो वर्टेक्स अगर आ गया, केस 2 का मतलब हेडिंग डाउनवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स अगर आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू वहां मिल जाएगी और मिनिमम वैल्यू के लिए एक्सट्रीमिटीज. नेक्स्ट, फिर से एक बार अगर वर्टेक्स नहीं आता है तो फिर एक्सट्रीमिटीज पर हमको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. नेक्स्ट, I think we have solved this example, right? In previous class we solved this example. Next, yes, so this was your homework and this was your homework. So I don't know how many of you have actually solved this problem, because कल जो है मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, हमारा प्यारा बच्चा जो है खारगर का, उसका नाम है ओके. ओके आज है क्या? ओके Okay, are you there? Yes, okay is here. Very good. तो ओके बेचारा कल भूल गया था कि उसने लेक्चर अटेंड किया है कि नहीं किया है. 24 आज. ओम, आज तुमने बोमिटा पिया था बेटा? शाबाश शाबाश, आज तो इसको याद है. वेरी गुड. तो ये क्वेश्चन हम लोग चलो सॉल्व करते हैं, जिससे एक क्विक रिवीजन मिलेगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ. काफ़ी लोग आंसर बता रहे हैं. आई थिंक उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, बट हम एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को. प्रेस 3. यस गाइस, सो दिस इज अ क्वेश्चन. y equals to 2x square plus 4x minus 1. This is the first part of the question where x belongs to minus 2 to 3, and this is the second part of the question where x belongs to 0 to 1. So what is the most important thing here? We have to check the x coordinate of domain, that is minus b by 2a. Let's check minus b by 2a. Tell me, what is minus b by 2a? What do you get? Right, it is minus 4 upon 4, it is minus 1. Now for first part, if we go to first part, minus 1 belongs to minus 2 to 3. है कि नहीं? भाई minus 1 देखो, yes. For the first one, minus 1 belongs to minus 2 to 3. Now what does this mean? Look, this is heading upward parabola. Heading upward parabola, vertex is included, so obviously the minimum value will be what? Minus d upon 4a. And if you calculate minus d upon 4a, what will you get? Minus 3, yes. You will get minus 3. So minus 3 is the minimum value. And what about maximum? What about the maximum value of this quadratic in this restricted domain? So we have to check that out of these two, which two? F of minus 2 and f of 3. Do we actually need to check? कल हमने कुछ बात की थी, याद है कि भाई वर्टेक्स पर आगे मिनिमा है ना, ये रही हमारी एक्सिस सिमेट्री. वर्टेक्स पे मिनिमा है, जितनी हम इससे दूर जाएंगे वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी, जितना हम इससे दूर जाएंगे वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी. तो अगर हम थोड़ा सा, ठीक है, दो वैल्यू चेक करने में कोई टाइम तो लगेगा नहीं, बट अगर तुम्हें दोनों को चेक नहीं करना है, यू कैन इमेजिन कि कहां पर तुमको हायर वैल्यू मिलेगी, बिकॉज वर्टेक्स इज एट minus 1 एंड minus 2 इज इनफैक्ट क्लोजर. 3 is far away from minus 1 comparatively. So फिर 3 पर अगर तुम देखो, चलो दोनों वैल्यूज हम लिख लेते हैं. वैसे
it is maximum of, what is f of minus 2? Put, I think 8 minus 8 cancel, minus 1, is it? Right? Yes. And what about f of 3? So 18 plus 12, yes, 30 minus 1, 20, no. 29, देखो ना, 18 plus 12, 30 minus 1, it is 29. So what is maximum out of these two? It is 29. But finally, before you write your final answer, do not forget that we have a round bracket. We have a round bracket at 3. Yes, very good, Palash. So your final answer will be minus 3 included, because vertex is included, but 29 excluded. And why 29 is not included? Because if input is not included, the corresponding output will also be not included. So if I ask you, what is the actual maximum value of this quadratic? We don't know, because it is the real number which comes right before 29. अब 29 के पहले क्या आता है? हाँ? इसके लिए तो हमको सिद्धि विनायक जाके, हाँ, तनिष देखो बता रहा है 28.9999999 कितने लाइन है भैया? But you cannot say it is 9 bar, because you know 28.9 bar will be 29. So it is a value which we cannot define. So don't ask me कि maximum value क्या है. But you have a method to represent your answer. You have to choose round bracket instead of square bracket. All right. Second बार तुम कर लोगे. चलो ठीक है. Let's move ahead. Press 3. And so this was the first part of the question. Second part तुम कर लोगे. Vertex is not included. तो बस तुम्हें 0 और 1 को substitute करना है. 0 रखोगे तो minus 1 आएगा, और 1 रखोगे तो 5 आएगा. So answer is minus 1 excluded to 5 included, right? Minus 1 include नहीं होगा भाई. Minus 1 देखो ना 0 पर. Can we put minus 1 in the equations? Yes, Vedant. It is also fair to put the x coordinate of vertex to find a value of y coordinate. Correct. Next slide. Next slide में देखो दूसरा क्वेश्चन था, तुम कर लोगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये दोनों क्वेश्चंस अगर तुमने सॉल्व कर लिए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा ठीक है. योर आंसर इज 2 to 6. कंफर्म इट वेट. उसका आंसर 2 to 6 आता है. क्या सही आ रहा है आंसर सदगुण का सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए? इज इट 2 to 6 इंक्लूडिंग बोथ? देखो 2 मिनट लगेंगे यार. माइनस by2 कैलकुलेट किया हमने, -4 upon 2. सो आई थिंक इट इज एट 2. और अगर तुम देखो फर्स्ट पार्ट में 2 इंक्लूडेड है, राइट? आकांक्षा इज ऑल्सो सेइंग 2 is included between 0 to 4. 2 is not included. Why you are saying 2 is not included, Advait? 2 is included, right? 2 belongs to 0 to 4 in first part. तो अगर मैं 2 रखूंगा तो 8 minus 4, 4 plus 2, 6. 6 is the maximum value. Yes, 6 is the maximum value. And then you compare the values at 0, at 4. तो 0 पर भी 2 आता है, 4 पर भी 2 आता है, but 0 इंक्लूड नहीं, 0 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है. दोनों पर सेम वैल्यू आ रही है. So what should we do? Should we include or should we exclude? Yes, we should include. भाई अगर एक तरफ से नहीं आया तो दूसरी तरफ से तो आ गया एटलीस्ट. We have to include. Answer is square bracket 2 to 6. Both square brackets. Did you get it? 0 पर भी वैल्यू 2 आ रही है और 4 पर भी वैल्यू 2 आ रही है, राइट? सेकेंड वन, अब देखो 2 इसमें आ नहीं रहा, बस 3 रख दो, 5 रख दो, कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर. -3 to 5. यस, आंसर इज आई थिंक -3 to 5. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. राइट, तो ये हो गया रिवीजन हमारा लास्ट लेक्चर का. और अब आ रहे हैं हम एक नए पॉइंट पर. हेडिंग तुम्हारी होगी आज की रेंज ऑफ अ रैशनल फंक्शन px upon qx. Range of a rational function. Range of a rational function px upon qx. अब पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रैशनल फंक्शन.
रैशनल फंक्शन होता क्या है भाई? रैशनल नंबर सुना था, रैशनल फंक्शन क्या है? हाँ, किसी को पता है? और मैं बताता हूं. प्रेस 3. Anybody? What is function made using rational number? What does it mean? A function in the form p by q. Sounds good. P by q. Like I had given an example, 2 upon x minus 3. Why not? Very good. When you say p upon q, Akanksha is also saying p upon q. Okay. So sin x upon cos x, do you think it's a rational function? No, it is not. No. It is not about input. No. It is nothing. Input से इसका कोई relation नहीं है. What is a rational function? By definition, I'm not defining it. It is actually defined already. Any function of this type, px upon qx, where p of x and q of x are polynomials. Polynomials in x. And q is not 0, obviously. Qx is not 0. Qx cannot be 0, denominator cannot be 0. So very simple, right? Now we are looking at a rational function, and what is a rational function? A function of this type, px upon qx. But remember, it cannot be any px, any qx. It is not like तुमने 2 power x को log x से divide कर दिया, sin x को x से divide कर दिया. These are not rational functions. For any function to be rational, px and qx both must be polynomials in x. So for example, let's take some examples. Examples like x plus 1 upon x square plus 1 is, no Sadgun, 1 upon sin x is not a rational function. Why? Yes, Adit, your answer is correct. X plus 2, 1 value is 0. No. You're not getting the point. When I say polynomials, it was the very first point of this chapter, right? Polynomials का मतलब क्या है? Powers of x, whole numbers, all those things. Vedant, you also take a look at this word polynomials. Px भी polynomial होगा, Qx भी polynomial होगा. Sin x is not a polynomial, yes. Log x is not a polynomial function. अब मुझे बताना पड़ेगा कि polynomial क्या होता है? Did you forget? Yes, we are taking this polynomial in single variable. For now, अभी हम एक ही variable ले रहे हैं. So x plus 2 upon x minus 3 ये एग्जाम्पल था अद्वैत का और अभिनव का. तो तुम सभी लोग मेरे ख्याल सब तक समझ चुके हो that what is a rational function. Come on, more examples like x square minus 1 upon x cube upon x plus 1. Look, in all these examples, we are taking polynomial upon polynomial. So the example he gave, Sadhguru is asking me what? X plus 2 upon x minus 3 will be rational. Yes. All these examples, and it's okay. Denominator 0 कब होगा? जब x 3 होगा. So we'll say 3 cannot be. अच्छा. I thought this is a very, very basic definition. Just one statement is sufficient to make you understand what is actually a rational function. So once again, because मुझे वही statement बोलना है, right? It is a polynomial divided by polynomial. X cube upon x square, yes, it is also a polynomial. Advik is saying x square plus 4 upon x power 4 plus x cube plus x square plus x plus 89. Yes, it is also a rational function. All these examples in which you take a polynomial divided by a polynomial is a rational function. Tell me where the confusion is. Confusion hai kya? X power 97 plus x cube minus 26 whole upon 12x. क्यों नहीं?
What about only x cube? Do you think we take two quadratic whose roots are imaginary and then we divide? अरे यार, are we taking equations? क्या मैं लिखा है x plus 1 equals to 0 upon x square plus 1 equal to 0? No, we are taking polynomials, and polynomials are expressions, they are not equations. How can you divide these two equations which are already equated to 0? 0 by 0 करोगे क्या? तो रूट्स इमेजिनरी हैं, रूट्स रियल है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम रूट्स की बात ही कहां कर रहे हैं? सो टेल मी, एक्स क्यूब इज अ रैशनल फंक्शन और नॉट? एक्स क्यूब इज अ रैशनल फंक्शन. यस, इट इज अ रैशनल फंक्शन बिकॉज, yes Shreya, very good. Yanesh, x cube, listen, x cube is a polynomial. You agreed? 1 is also a polynomial of degree 0. Denominator is x power 0. Yes. Enough here यार, बहुत हो गया. I think rational function समझ में आ गया होगा अब तक. तो इतना भी क्या था उसमें? हो गया? Okay, finally. Yes, yes, yes. Okay. Press 3. Press 3. Yes. So, listen. We are not just going through the definition of rational function. It is a continued point in range. So now we are going to find the range of a rational function. Vedant, if you will keep on asking me that what is a polynomial, what is not a polynomial, then you know this is endless. ये चलता रहेगा, right? तो अगर तुम्हें पता है polynomial की definition क्या होती है, so stop asking me these stupid questions. Root x, sin x, log x, ये सब polynomial होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में discussion बहुत पहले हो चुका है, right? So range of rational functions, फिर से ध्यान देखना भाई, ये definition का part नहीं है. All I'm saying is that degree of px or qx must not exceed 2 if we want to find the range of this rational function. ठीक है? तो अगर तुम रेंज निकालना चाहते हो, अभी तक तुमने जितना पढ़ा है, तुमने क्वाड्रेटिक में जितना पार्ट कवर किया है, you can find the range of rational function also, but कंडीशन ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल की यहां पर जो px और qx लिखा हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, किसी की भी डिग्री 2 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. अब उसका रीजन क्या है, तो जब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे यू विल गेट टू नो व्हाई इट शुड नॉट एक्सीड 2. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ केस 1, व्हेन डिग्री ऑफ px एंड qx इज एट मोस्ट 1, मतलब हम 2 पे भी नहीं पहुंचे, हम जो है यहां पर जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें दोनों ही देखो लीनियर है, राइट? सो वी हैव y इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 1, एंड इफ यू सी मैंने लिखा हुआ है दैट x, व्हाट अबाउट इनपुट? x कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग व्हाट? -1. एंड why it should be excluding -1? Because obviously अगर हमने x equals to -1 रखा, तो denominator will become 0 and function will become not defined. Correct. Press 3. Right. So this is our question. Example 1, where we want to find the range of this function, which is actually a rational function. What is the trick? You know, what is the trick? सबसे पहले ये चीज नोटिस करो that you have to find range means you have to find all possible values of y. तुम्हें y की सारी possible values निकालनी है. You want to find range means you have to find the values of y. So what is the trick? मैं पहले ट्रिक तुम्हें बताता हूं. ट्रिक ये है, try to express x, that is input, express x in terms of y. Express x in terms of y, and that can be done very easily. Why it can be done very easily? Because see,
मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर, if I cross multiply I'll get xy plus y equals to x minus 1, right? We can use componendo and dividendo in this particular example. Very good Parth, yes Tanish, very nice. But ऐसा करते हैं कि क्योंकि हर बार componendo and dividendo काम में नहीं आएगा, so why don't we just cross multiply and try to find x in terms of y. I hope I'm correct. If I'm shifting x to left hand side, it becomes minus x, y to right hand side, it becomes minus y, and if you take x common and here minus common, it will look like minus of y plus 1. Sadgun, how can you make a mistake there? Come on. अब इसमें भी अगर गलती होगी तो फिर minus of y plus 1 divided by y minus 1. ये देखो, in these 3 steps, okay, logo was over it. Okay, it is x plus 1. This is x plus 1. Okay, so are you getting this? X equals to minus of y plus 1 divided by y minus 1. सही है? यहां पर ध्यान से सब कुछ ठीक है? 1 plus y upon 1 minus y is also correct. सब कुछ सही है. अब देखो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि भाई x कुछ भी हो जाए, रहेगा तो रियल नंबर, इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, नॉट डिफाइंड तो हो नहीं सकता. माइनस ऑफ y plus 1 upon y minus 1. If you put any value of y, it will give you a real value of x for sure. तुम y को रख दो 2, 3 upon 1 minus 3 आ गया. तुम y को रख दो 0, minus 1 upon minus 1 plus 1 आ गया. Every time you put a value of y, any real number, you will get a value of x which is real, except a value which cannot be assigned to y. I'm not audible. Hey, Swagatam is saying I'm not audible. Guys, confirm. I am. Swagatam, I am audible. Yes, okay. So what value is not acceptable? Y can take any real value except 1, isn't it? And guys, believe me, this is our answer. आ गया आंसर? देखो ऐसा है ना, जर्नी वॉज सो फन कि हमको पता भी चला कि when we reached to our destination, we have reached. This is our answer. Eventually, what is range? Range is all possible, all acceptable values of y. Y can be any real number except 1. बताओ. Can we see the denominator and the value when denominator becomes 0? Can we write range? No, Vedant. अगर आप डिनोमिनेटर क्वेश्चन में देख रहे हैं तो आप x की वैल्यू को देख रहे हैं. So x, now for quadratic will we use same method. I'll come to that. Now if you're looking at x, you're looking at domain. When I write x belongs to R excluding minus 1, that means कि भाई डोमेन सब कुछ हो सकता है बट -1 नहीं हो सकता है. अब मैं अगर बोल रहा हूं कि y can be any real value except 1, that means I'm trying to say that range can be all real numbers excluding 1. तो क्वेश्चन को अगर देखकर हम आंसर निकाल लेते तो मैं ये सब क्यों कर रहा होता? नहीं कर रहा होता. वैल्यू ऑफ x इज डोमेन, वैल्यू ऑफ y इज रेंज. आई होप यू अंडरस्टूड, है ना? नेक्स्ट स्लाइड, प्रेस 3. लेट्स चेक आवर आंसर. नेक्स्ट स्लाइड. So write this important step. Write x in terms of y. That's what I said, right? In your notes, this point should be mentioned. Write x in terms of y. Next. So x equals to 1 plus y upon 1 minus y, as I said, as I solved. And next slide. So range is all real numbers excluding 1. This is what we have got, right? क्यों भाई? बताओ भाई, ये आंसर सबको समझ में आ गया?
यस, ओके, वेरी नाइस। आओ देखते हैं आगे क्या रखा है मैंने। चलो, लेट्स सॉल्व दीज 3 प्रॉब्लम्स एंड फाइंड योर आंसर्स। आई डोंट थिंक इट शुड टेक मोर देन 2 minutes। कम ऑन, अद्वैत, श्रवनी, एवरीबॉडी, आकांक्षा, सभी लोग 2 मिनट में मुझे आंसर चाहिए इसका, नॉट मोर देन 2 minutes एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1:37। No, Tanesh, again you are confusing yourself. It is range of function. It is not range of x, range of y. It is range of a function. Now, range of a function is the values of y. Domain of the function is the values, acceptable values for x. तो जो x की values हैं वो domain है और जो y की values हैं वो range है. It is not range of x and range of y. If you say range of x, then it is domain. When you say range of y, it is range of function. Okay? For the first one, answer is all real numbers excluding 2. Okay? Okay. प्रसून का भी आंसर सेम है। अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है all values except 2. Very nice. क्या बात है? ओके, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर मान लेते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2। लेट्स सी सेकंड पार्ट का आंसर क्या आता है। सेकंड पार्ट का आंसर हमारा क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग हाफ। इज इट आकांक्षा? आई मीन डोमेन एंड रेंज आर, आई मीन इट इज पॉसिबल, हो सकता है, बट कंफर्म कर लो एक बार फिर से। सेकंड वन का आंसर क्या है? All real numbers excluding half. Okay, okay, maybe. बिल्कुल सही है, ठीक है। Everybody is getting the same answer. All real numbers excluding half. Shri Haran got all 3. Okay, nice. थर्ड का आंसर श्री का आया है all real excluding 3. वाह, क्या बात है। R-2, R excluding half, R excluding 3. ये 3 आंसर्स आए हैं। वेदांत का भी आ गया R excluding 3, थर्ड पार्ट का आंसर। वेल बिफोर टाइम, वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत जल्दी किया यार। शाबाश। हाँ, सो लेट मी चेक, y में क्या मल्टीप्लाई हुआ, x। हाँ, सो फर्स्ट का आंसर r एक्सक्लूडिंग 2, सेकेंड का आंसर होगा 2y-1, r एक्सक्लूडिंग हाफ, और थर्ड का आंसर होगा y-3, यस, ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 3। वेरी गुड, ठीक है भाई। ओके का आंसर नहीं आया भाई। ओके, जब तक तेरा आंसर नहीं आएगा तब तक इट इज नॉट ओके। कर रहा, अच्छा, क्या कर रहा? कर ले यार, सो मत जाना पढ़ते पढ़ते। किसी को अभी तक कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड पे आए। ये तो इजी था। आई थिंक तुम्हारी बोर्ड की टेक्स्ट जो तुमने टेक्स्ट बुक सॉल्व की होगी उसमें फंक्शंस वाला चैप्टर तुमने पढ़ा होगा, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस वहां पे हैं। आई थिंक सीबीएसई में ये क्वेश्चंस हैं, मुझे जहां तक लग रहा है कि नहीं है? क्या बताओ? किसी ने कॉलेज लेक्चर अटेंड किया ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कुछ, है ना? याद ही नहीं है। अरे वाह बहुत टाइम हो गया ना। स्टेट बोर्ड में नहीं। अच्छा, हाँ हो सकता है प्राप्ति स्टेट बोर्ड में ना हो, बट सीबीएसई में तो है। सीबीएसई में सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस, द वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो फंक्शंस में जब तुम आओगे, क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड देखो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ मेक केस 2, राइट दिस। When degree of one of px or qx is 2 and degree of other is at most 2. हाँ तनिष, you got correct answer, correct. केस 2 की कंडीशन देखना। केस 2 की कंडीशन क्या है उसको नोट करो। When degree of one of px or qx is 2,
मैं एग्जाम्पल नोट करते हैं. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2. x can be all real numbers excluding -2. तो ये क्वेश्चन है हमारा, राइट? ओके, प्रेस 3. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, राइट? इस क्वेश्चन में इस बार चेंज क्या है? इट इज नॉट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2. क्या हमारी वो ट्रिक, क्या ट्रिक? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y काम करेगी? आओ देखते हैं. कैन वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y? कैन वी डू दैट? आई डोंट थिंक. नोप नोप नोप. अरे ऐसा क्यों भाई, इतना पेसिमिस्टिक क्यों हो रहे हो? देखो हम ट्राई करते हैं. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. इट इज xy plus 2y equals to x square minus 1. Since we have x square, so shifting everything to right hand side, it will be x square minus xy minus 2y minus 1, so minus commonly a minute, 2y plus 1 equals to 0. Now, you're saying we cannot express x in terms of y. We can do it, come on. क्वाड्रेटिक चैप्टर हमने पढ़ाई क्यों? अरे भाई, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स. यू कैन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. यार देखो ना, लेट्स यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. व्हाट इज एक्स इक्वल्स टू? कम ऑन, व्हाट इज एक्स इक्वल्स टू? माइनस बी. व्हाट इज बी? बी इज माइनस वाई, सो इट इज वाई प्लस माइनस रूट ओवर y स्क्वायर, वही जो डिस्क्रिमिनेंट में आता है, y स्क्वायर माइनस 4ac, तो विल बिकम 4 टाइम्स 2y प्लस 1 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज 2. तो हो तो गया. वी हैड टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. हो तो गया. नाउ बिफोर आई मूव फर्दर, याद करो कंडीशन क्या थी. कंडीशन सेज दैट डिग्री ऑफ एनी वन ऑफ दीज टू शुड नॉट एक्सीड 2. मैंने पहले ही कह दिया था. कैन यू अंडरस्टैंड द रीजन नाउ व्हाई वी हैव टेकन 2 पॉलिनोमियल्स इन विच डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल शुड नॉट एक्सीड 2, इज नॉट एक्सीडिंग 2, बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर ए क्वाड्रेटिक टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y. अज्यूम करो कि यहां पे x क्यूब होता. इन न्यूमरेटर वी हैव अ क्यूबिक, वी हैव डिग्री 4, डिग्री 5 और डिग्री 10, व्हाटएवर. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होता, मुझे उसी डिग्री का पॉलिनोमियल मिला होता. एंड आई अनफॉर्चुनेटली डू नॉट हैव एनी आइडिया दैट हाउ टू सॉल्व अ क्यूबिक, हाउ टू सॉल्व अ बाई क्वाड्रेटिक. इनफैक्ट आई हैव एन आइडिया हाउ टू सॉल्व अ क्यूबिक. यू डू नॉट नो येट. बट फिलहाल इस चैप्टर में, बिकॉज वी आर कवरिंग क्वाड्रेटिक ओनली, that's why there is a limitation, there is a condition which says that we are going to encounter those questions only where we have quadratic upon quadratic, quadratic upon linear, linear upon quadratic. The degree of numerator and denominator will not exceed 2. This is the reason. I hope you understood. And now come back to the question. Now once you have expressed x in terms of y, the discriminant is perfect square. Is it? I don't think discriminant is a perfect square, Vedant, because ये होता y square plus 4y plus 4, तब ये perfect square बनता. Very nice Palash, very nice. Palash knows how to solve further and everybody. देखो रटना एक अलग चीज है, रट तो हम लेंगे. मेथड क्योंकि बहुत सिंपल है, इसके बाद कुछ करना है नहीं. बट इफ यू विल अंडरस्टैंड, है ना, देन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू हैव लर्नड. तुम सीखे हो. प्रोसेस के थ्रू चलो. x in terms of y आ गया. What is the condition on x? x must be real. x cannot be imaginary. x cannot be not defined. For example, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x belongs to r, तो उसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो मैंने x in terms of y निकालना है, ये पूरी वैल्यू रियल आनी जरूरी है. It must be real. Now what's stopping us to call this real?
अभी हम कैसे, हाँ भाई y को तो हम रियल वैल्यूज असाइन करेंगे तो ये पार्ट तो उसका रियल रहेगा, बट व्हाट अबाउट दिस थिंग विच इज इन द स्क्वायर रूट, अगर ये नेगेटिव हो गया, यस अगर ये चीज नेगेटिव हो गई तो भाई x की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी. सो आर यू गेटिंग द होल थिंग, क्या हो रहा है यहां पर, सॉल्व कैसे हो जाएगा? ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू से दैट y square plus 4 into 2 that is 8y plus 4 must be greater than or equal to 0, which simply means discriminant greater than or equal to 0. Whose discriminant भाई, किसका discriminant है ये discriminant है इस quadratic का. Let's call this quadratic one. Yes, yes. तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है. While solving questions, जब तुम क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहे होगे, you need not to apply the quadratic formula. You can move directly here that for this quadratic discriminant must be greater than or equal to 0. But यहां पर आने से पहले you need to understand कि हमने किया क्यों ऐसा. Because we have a quadratic in x. When we will try to find the value of x in terms of y, this discriminant will come in the square root, and for x to be real, discriminant must be greater than or equal to 0. Sadhguru, we need not to find the roots of this quadratic, we want to solve this inequality. Vedant, this quadratic in y is not having imaginary roots. I don't know what type of calculation mistakes you always do, but ऐसे ही नहीं चलेगा यार. इतनी सारी mistakes कैसे कर सकते हो? ये इसकी imaginary roots है भाई? I don't think so. अब इसकी जो भी रूट्स हो, रूट्स निकालो. तुम्हें पता है वेवी कर्व मेथड, इफ इट इज y minus alpha, y minus beta greater than or equal to 0, where assuming alpha is less than beta, alpha is the smaller root, you know what will be your answer. Wavy curve method से alpha, beta ये included है, ये भी included है. So where is it positive? इसकी वैल्यू पॉजिटिव कहां पे आएगी? अल्फा से पहले और बीटा के बाद में. इफ यू नो, इफ यू रिमेंबर, इट इज ऑलवेज नॉट बिटवीन द रूट्स. माइनस इंफिनिटी टू अल्फा. व्हाट इज अल्फा? रूट निकाल लो भाई इसकी. रूट क्या आ रही है? -4 प्लस माइनस 64 minus 16, that is 48, which is 2 root 3. Okay, -4 minus 2 root 3, including alpha is included, union -4 plus 2 root 3 to infinity. And this is your answer. तो भाई आंसर तो आ गया. मेथड क्या है? क्या है हमारा मेथड? इफ यू फॉलो द सेम स्टेप्स, एक्सप्रेस x in terms of y, that means cross multiply, make a quadratic. एक बार तुम्हारी क्वाड्रेटिक बन गई, you jump to this step, discriminant greater than or equal to 0, and you will get your answer. Could you please tell again from D? From D, I have just revised how to solve inequalities using wavy curve method. So if you remember how to solve inequalities using wavy curve method, it was like what? Factorize the expression. So we factorize the expression using factor theorem. If alpha, beta are the roots, y minus alpha, y minus beta are two factors. And then I used the wavy curve method, right? No, we have to find roots, but I thought you were giving the answer as roots. No, answer is actually just minus infinity to 1 root, union beta to infinity. Yes, your answer is right. We have found the values of y. This is the range of the function. Values of y जैसे मिलते हैं वही तो आंसर है, right? तो बताओ मुझे, एक बार मैं इसको अगर रिवाइज करूं पूरे मेथड को, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, मेक अ क्वाड्रेटिक, एंड डिस्क्रिमिनेंट greater than or equal to 0. Let's see what is written in the slides. Press 3. Press 3, yes. Next. Let's express x in terms of y again. Next. To find x, we need to apply quadratic formula, right? Correct. Next.
And as x is real, discriminant must be greater than or equal to 0. Why I am making x greater than or equal to 0? Oh, sorry, discriminant greater than or equal to 0, because x is real. Arnav, if you're asking why we are saying that discriminant should be greater than or equal to 0, because x is real. We have a quadratic in x. That is why. Next slide. Now, take this example. Let's move to second nose. I think in this slide, yes, I just mentioned the inequality y square plus 8y plus 4 greater than or equal to 0, and you know how to solve it. Okay, next slide. So, this is the summary of the solution, that to find range in such problems, we will cross multiply and always try to form a quadratic in x. Since x is real, by solving d greater than or equal to 0, we will get our answer. It will. Okay? Let's take one more example. Chalo, next. Okay, we will try to solve this, and I think पहले एग्जाम्पल के बाद तुम दूसरा एग्जाम्पल खुद ट्राई कर सकते हो. चलो ट्राई करो भाई इसको. क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है. y इक्वल्स टू, दिस टाइम इट इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. And if I ask you what is the domain of this function, what is the domain of this function, then it is x belongs to R. We have to solve the inequality, so find roots fine, but we have to solve inequalities to solve d greater than 0. So in this example, why I am saying that domain is R? Because you see, the quadratic in denominator will never become 0. देखो ना, उसकी roots imaginary. So every input is acceptable. Denominator is always positive, yes. So every input is acceptable. That is why. Fine. So let's move. Wait. क्या होगा next step? We are going to cross multiply. Domain is given. Yes, domain must be given. Or if domain is not given, before you find range, you should mention domain. And what is the reason? I'll tell you. मैं तुम्हें बताता हूँ. पहले तुम cross multiply करो. Let's see in the next slide. Cross multiply, I think. हाँ. क्या cross multiply करने के बाद सभी को ये मिल रहा है? Check. Are you getting the same quadratic in x? Are you getting y minus 1 into x square plus y minus 1 into x plus 2y plus 1? क्यों भाई? सबको मिल रहा होगा, I think? Yes, yes. Also as x is real, so d greater than or equal to 0. Next slide. Wait before you say d greater than or equal to 0 करने से हमारा आंसर आ गया. इसके पहले एक चीज सोचते हैं. अरे डिस्क्रिमिनेंट तो तब होगा ना जब ये क्वाड्रेटिक होगी. क्या ये हमेशा क्वाड्रेटिक होगी? Is it always a quadratic? If y equals to x, कब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी ये बताओ? जब y जो है, अगर मान लो y की वैल्यू 1 हो गई, अगर y की वैल्यू 1 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी भाई. देखो ना, what is the coefficient of x square? y minus 1. Yes, Yadnesh, very nice. अगर y की वैल्यू 1 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, राइट? सो बिफोर यू, देखो बहुत माइन्यूट चीजें हैं बट हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते. इग्नोर किया तो ऑलमोस्ट सारा आंसर तुम्हारा करेक्ट आ गया. यस यस, वत्सल इज सेइंग y इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा वत्सल निकाल लिया है, बट हम उसको बाद में देखते हैं. बट सबसे पहले ओके, प्रेस 3. सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हम लोग केस बना के देखते हैं कि y नॉट इक्वल टू 1. एंड y आई एम सेइंग y शुड नॉट बी इक्वल टू 1. यू नो द रीजन. क्योंकि अगर y 1 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट को
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखने का मतलब क्या है? क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ही नहीं है, राइट? So let's find the discriminant of this quadratic. क्या होगा discriminant इसका? Y minus 1 का whole square minus 4 times y minus 1 into 2y plus 1 greater than equal to 0. अब ये रही तुम्हारी इनइक्वलिटी. बहुत इनइक्वलिटी सॉल्व करवाई है मैंने, बहुत सारा होमवर्क, 6-7 जो भी 10-15 क्वेश्चंस तुमने सॉल्व किए थे उस दिन. सो आई थिंक यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस इनइक्वलिटी. इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करो एंड प्राप्ति, इट इज जस्ट यू जस्ट सिंप्लीफाइड. आई नीड आंसर फॉर आंसर लाइक दिस. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ y, yes, for what values of y this inequality will be satisfied. And you know how to solve this using wavy curve method. In fact, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का डायरेक्ट आंसर है हमारे पास. हेडिंग अपवर्ड पैराबोला, बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होता है, नॉट बिटवीन द रूट्स पॉजिटिव होता है, राइट? चलो ट्राई करो सभी लोग और मुझे बताओ कि केस 1 का आंसर क्या आता है. स्लाइड प्रेस 3. देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है. You just need to solve a quadratic inequality. और बहुत प्रैक्टिस हुई है भैया इसके बारे में. ऐसा मत करो कि आंसर नहीं आ रहा या गलत हो जाए. प्राप्ति नो. सी where are we making mistake? सदगुण, कैलकुलेशन अगर गलत होती है तो फिर आपको जो है, yes, your calculation is wrong. Yadnesh, your calculation is wrong. Vatsal is correct, but I won't tell you the answer. Arnav, no. Arnav, partial answer है तुम्हारा यार, मतलब complete answer नहीं है अर्णव यार. Okay? तो partially correct है. वत्सल का आंसर अभी तक सही आया है, केवल वत्सल का आंसर ही करेक्ट आया है. बोर्ड में बेटा यही लिखा हुआ है ना, d greater equal to 0. आकांक्षा, नो आकांक्षा, चेक द रूट्स. आकांक्षा, रूट्स क्या है उसको चेक करो. योर आंसर इज नॉट करेक्ट बिकॉज रूट्स निकालने में तुमसे गलती हुई है. मैं बोर्ड दिखाता हूं एक बार, रुक जाओ बस. तनिष्क का आंसर सही है, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस. तनिष्क, योर आंसर इज करेक्ट. अर्णव इज करेक्ट. पलाश इज नॉट करेक्ट. वेदांत क्या लिख रहा है यार? लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो, वॉकिंग वॉशिंगटन. नहीं, तुमने लिखा नहीं है ये, बट तुम लिख रहे हो r greater than 4. नाउ व्हाट डज दिस मीन? क्या है r क्या है भाई? हम तो y निकाल रहे थे, ये बीच में r कौन है? आकांक्षा, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. नो प्राप्ति, नो. श्री अरन का सही आंसर आ गया भाई, ठीक है. अभी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में तुम लोग गलत कर रहे हो, ये बहुत सरप्राइजिंग है. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी रॉन्ग कैसे हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गलत नहीं होनी चाहिए यार, हैं? चलो देखो, मैं ही दिखाता हूं भाई. यहां तक हम पहुंच चुके हैं. फर्स्ट मिस्टेक यू आर डूइंग इज यू आर सॉल्विंग ऑल दिस. व्हाई यू आर सॉल्विंग ऑल दिस? बिकॉज इफ वी हैव टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी वी हैव टू फैक्टराइज. और देखो यहां पर फैक्टराइज करने का चांस तुम्हें मिल रहा है. देन व्हाई आर यू ओपनिंग दिस स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग दिस एंड सॉल्विंग ऑल दिस? यू हैव टू टेक कॉमन. यस, सदगुण देखो इतना स्मार्ट है, उसने कॉमन लिया है ना. टेक कॉमन, टेक y minus 1 कॉमन. यस, तो y minus 1 अगर मैंने कॉमन ले लिया, व्हाट विल आई गेट? यहां बचेगा y minus 1 और यहां पे -4 टाइम्स 2y plus 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.
Solve this, simplify this, and tell me what do you get. After simplification, you will get one factor as y minus 1 and other factor y minus 8y is minus 7y. And minus 1 and what? Minus 4, it is minus 5. तो पहले तो वो लोग हैं जिन लोगों ने ये फैक्टराइज सही नहीं किया, जिनकी रूट्स ही सही निकली, फैक्टराइज गलत किया हुआ है. दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इस पॉइंट को इग्नोर किया व्हेन आई सेड दैट यू हैव टू मेक all the coefficients positive plus 1. Take this minus 7 common. Before you plot, take this minus 7 common. And when you will remove this negative number, what will happen? Inequality reverses and this becomes y minus 1 into y plus 5 by 7 less than or equal to 0. Inequality reverse हो गई, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, देखो सब बदल गया. अब तुम लोग यार ये इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करोगे, तुम्हें उल्टे आंसर मिलेंगे. माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5/7 1 to infinity. कम से कम 5 लोगों ने ऐसे आंसर दिया. यस, सो ये लेस देन 0 है, तुम्हारा आंसर उल्टा आ जाएगा. ध्यान से, माइनस 5/7 and 1. तो देखो वेवी कर्व नेगेटिव कहां पर है? इट इज बिटवीन माइनस 5/7 and 1. So your answer is y belongs to minus 5/7 included. Minus 5/7 is included. देखो इक्वलिटी है. Don't use round brackets. Brackets के साथ छेड़छाड़ नहीं, भेदभाव नहीं. Brackets तुम लोग ऐसे लिखते हो ना, बस अरे राउंड स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, थोड़ा घूम गया उसमें, क्या है ना. What about 1? Yes, पलाश. अरे भाई पहले केस को देखो, मैंने क्या लिखा है? y कैन बी इक्वल टू 1. अगर तुम इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन पूछते हो तो 1 तो इंक्लूड होगा, बट लुक एट द कंडीशन, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1. y को एक्सक्लूड रखना पड़ेगा, नॉट बिकॉज ऑफ दिस. यहां तो 1 इंक्लूड होता, बट बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन. सो y बिलोंग्स टू माइनस 5/7 to 1 राउंड ब्रैकेट. इज दिस द आंसर? नो. केस 1 भी सॉल्व हुआ भाई, केस 2 तो बाकी है कि नहीं? केस 2 अभी बाकी है मेरे दोस्त. एंड व्हाट इज केस 2? व्हाट इज केस 2? केस 2 क्या है? केस 2 होगा ऑब्वियसली जो केस 1 में नहीं हुआ, यानी कि क्या? व्हाट इफ y इक्वल्स टू 1? y इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा? क्या होगा? और देखते हैं इस इक्वेशन में ये जो क्वाड्रेटिक हमने x की बनाई थी. हाँ आदित्य सही है भाई. y इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 रखेंगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा. यहां पे आएगा 3 इक्वल्स टू 0. 3 इक्वल्स टू 0. ये क्या आ गया भाई? क्या है ये? अब यूरेका बोल के घर से बाहर मत भाग जाना तुम लोग. हाँ कि मैंने आज जो है 3 इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया. यस, 3 इक्वल्स टू 0 नहीं हो गया. इसका मतलब है we are getting a contradiction. This is something which is not acceptable. It is a contradiction. When you get a contradiction, the value you have taken, you have assumed, is not acceptable. So this means what? So this means y actually cannot be equal to 1. So reject this value. Yes, reject it. निकाल के फेंक दो उसको बाहर. हम निकाल चुके पहले ही. लेकिन मान लो यहां पे आया होता, मान लो अज्यूमिंग 3 इक्वल्स टू 3 आ गया होता, मान लो 3 इक्वल्स टू 3. अब क्या होता? 3 इक्वल्स टू 3 इज एन आइडेंटिटी. और अगर यहां पर आइडेंटिटी आ रही होती, समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट. तब तुम 1 को एक्सेप्ट कर रहे होते. सो टेल मी व्हाट इज योर फाइनल आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर? दिस आंसर इन केस 1 is your final answer. यही हमारा आंसर हो गया, राइट? 1 not included. अब जो हमने इतना डिटेल में आंसर लिखा है, तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि हम मिस्टेक कहां कर सकते थे. एक बहुत छोटा सा मैटर था, d greater equal to 0 सॉल्व किया, आंसर आ गया अगर तुमने इनइक्वालिटी सही सॉल्व की. लेकिन अगर मैंने ये केसेस नहीं बनाए होते,
मैंने केवल ये इनइक्वालिटी सॉल्व की होती तो मेरे आंसर में 1 पर स्क्वायर ब्रैकेट होता और वो आंसर रॉन्ग होता। तो 1 को राउंड ब्रैकेट में रखना है या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, इट विल बी डिसाइडेड इन केस 2, राइट? दैट्स व्हाई दिस मच डिटेलिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडवांस में वो छोटे से ऐसे पॉइंट्स जिनको हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं, माइंड नहीं करते हैं, वहीं पर उनका पूरा फोकस रहता है। सो रिमेंबर, इन दीज केसेस व्हेन वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y minus 1, y itself, 2y minus 1, whatever it is, we have to form two cases. It doesn't happen in previous question. Why? Because वहां पर x square लिखा हुआ था, यहां पर कोएफिशिएंट नहीं था। Yes, yes. Can you please explain how did it click to us that we should take case 1? Yes, you have to take case 1 when there is a variable as a coefficient of x square. There is a coefficient of x square in terms of y. Then you have to form two cases always. If you check previous question, in previous question when we cross multiplied, there was coefficient of x square as 1. 1 was the coefficient, right? And then how did you know that 1 will give wrong answer before solving the question? No, not before solving the question, obviously. We solved case 1, then we came to case 2, and then when I plugged in the value of y as 1, जब मैंने y equals to 1 रखा, then I realized I'm getting a contradiction, and that's why 1 should be excluded. Yes, we have to form cases depending on the equation. Okay? Don't worry, we will have many examples. अभी हम और examples लेंगे. You'll get to know. Press 3. 3 बार press करना. Next slide. और देखो, it is not a quadratic always, right? Quadratic है, but not always. Next. So we have to form two cases. Case 1 when y not equal to 1. That's what we did. Solve d greater equal to 0. Next. Substitute and check if it satisfies. Case 1 and case 2, try to understand. Case 1 में we are solving d greater equal to 0. In case 2, we are saying that we have to substitute the value of y and we will check if it satisfies. Means if it is not giving a contradiction. Next. Alright, try this. चलो भाई सभी लोग लग जाओ इस पर और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है. Let's take this third example. Y equals to 1 minus x squared upon 1 plus x square. If you ask me what is the domain of this problem, what are the possible values of x, obviously answer is x belongs to R. All real values. All real values. Correct? चलो बताओ. Solve करो उसको. Find the value of y. Same steps अगर तुम repeat करोगे तुम्हें आंसर मिल जाएंगे.
हेलो या अच्छा, -1 to 1 आ रहा है भाई कई लोगों का। सद्गुण का आंसर थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है। ओके, नहीं सद्गुण, नो, फिर चेक करो, फिर चेक करो, कोई बात नहीं, चेक करो, चेक करो। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। Almost everybody is getting -1 to 1. वाह, अब देखते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। एक मिनट, yes. Okay, so y equals to 1 minus x square upon 1 plus x square, huh? Okay, remove it. Right, so let's cross multiply first. When you cross multiply, you will get what? X square, I think y plus 1 equals to 1 minus y. And this implies, what do we have? We have x square into y plus 1 minus or plus y minus 1 equals to 0. Y plus 1 into x square plus y minus 1 equal to 0. Correct. It is also a quadratic because many of you are saying अरे quadratic आई नहीं, अरे quadratic ही तो है, बस यहाँ पे b 0 है, x की टर्म नहीं है क्या? Same process. What is case 1? Case 1 says that y plus 1 is not equal to 0. If you are going to consider discriminant, then y plus 1 should not be equal to 0. That means what? Y is not equal to -1. We will check it later. Y is not equal to -1. Now check discriminant, solve this inequality. And I don't think इसमें फिर तुम्हें कुछ गलत आंसर मिलना चाहिए because ये बहुत सिंपल होना चाहिए. It should be 0 square b square minus 4ac. So 4 times y plus 1 into y minus 1. Keep it that way. क्या करना है? Multiply क्यों करें? हमको तो factorize वैसे भी करना है. So 0 square obviously 0 हटा दो. Remove -4 and do not forget to change the sign of this inequality. So wavy curve, -1 plus 1. -1 we will not include because of the case. जो हमने केस स्टार्ट किया था, देखो -1 was not included, तो -1 यहां डाल दिया मैंने. What about 1? 1 should be included because इक्वलिटी आ रही है. और अब नेगेटिव कहां पर है? Between -1 to 1. So answer is y belongs to, answer for this case, answer is -1 to 1. How should we form cases? Is it depending on the coefficient of x square? Yes, it is depending on coefficient of x square. और कहाँ पे डिपेंड करेगा भाई? प्राप्ति, this
is the coefficient of x square which will tell you that is it going to be a quadratic or not. Because अगर y equal to -1 हो गया, this will not be a quadratic. Why is -1 not included? Because अगर -1 इंक्लूड कर लिया होता तो ये क्वाड्रेटिक बनती ही नहीं, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करने का मतलब क्या है, अगर क्वाड्रेटिक है ही नहीं, है ना. नाउ व्हाट अबाउट केस 2? और केस 2 वेरीफाई करते हैं. व्हाट अबाउट केस 2? अब हम चेक करेंगे कि क्या होगा अगर y की वैल्यू -1 हो गई. तो अगर y की वैल्यू -1 हो गई, हमने भी डिसाइड नहीं किया है कि -1 होगा या नहीं होगा, ये केस 1 का आंसर. अब केस 2 में हम वेरीफाई करेंगे कि होगा या नहीं होगा. आओ y को -1 रखते हैं, कहां पर, इस क्वाड्रेटिक में रखो भाई. y को -1 क्या हो गया, 0 -1 -2, क्या ये, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. अब ये ऐसा रूल मत बनाना ना कि हमेशा, नहीं हमेशा हमको कॉन्ट्राडिक्शन ही मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है. ये 2 एग्जांपल से मिल गया तो ऐसा नहीं कि हर बार कॉन्ट्राडिक्शन ही मिलेगा. देखते हैं आगे भी क्वेश्चंस आएंगे. फिलहाल दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो रिजेक्ट दिस वैल्यू. y कैन नॉट बी इक्वल टू -1. y इज नॉट गोइंग टू बी -1, सो योर आंसर इज, आंसर विल रिमेन सेम. जो आंसर निकाला था हमने, y बिलोंग्स टू -1 excluded to 1 included. This is your final answer. For case 2 not be a contradiction, c equals to 0. ये क्या लिख रहा है स्वागतम, c equal to 0? What is c equal to 0? अच्छा, c you're saying, okay, this part. Good observation, but it is not necessary. मैं तुम्हें दिखाता हूं क्यों. गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, स्लाइड नेक्स्ट. तो देखो आंसर इसका -1 to 1 है. -1 राउंड ब्रैकेट में है, इसको ध्यान रखना, आंसर नोट कर लो जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं. द वैल्यू ऑफ c इक्वल 0. सदगुण रुको, मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है. तुम लोग जो सोच रहे हो अच्छा सोच रहे हो, बट ऐसा नहीं है. नेक्स्ट, इन 3 एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ये तीनों एग्जाम्पल्स हम फिर से ट्राई करते हैं. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. x can take all real values excluding 1. ठीक है ना. अरे यार, yes, I know. First you note down the questions, then I will remove the slide and you will be able to see the board. Okay, so this is the first question, right? Why domain is all real numbers excluding 1? Because डिनोमिनेटर 1 रखा, देखो 0 हो जाता है. नॉट पॉसिबल, राइट? चलो जल्दी से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और क्वाड्रेटिक बना लें. y -1, यस, y -1 x स्क्वायर माइनस 2yx और माइनस 2x. सो इफ यू टेक दिस माइनस 2x कॉमन, सो दिस विल बी, आई थिंक, माइनस 2y और माइनस 2. इज इट -2 times y plus 1x, है ना, and plus y plus 1 equals to 0. So this is the quadratic we are getting. अब जिन लोगों को भी केसेस बनाने में डाउट है, मैं फिर बता रहा हूं, राइट? In the beginning I said, and after 3 examples once again, look at the coefficient of x square. Because this coefficient will decide कि भाई ये क्वाड्रेटिक रहेगी या नहीं रहेगी. तो y -1 क्या हो जाएगा जिससे क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी? 0. अगर y -1 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, राइट? तो केस क्या बनेगा तुम्हारा? व्हाट इज केस 1? इफ यू वांट दिस टू बिकम अ क्वाड्रेटिक, व्हाट विल बी द कंडीशन इन केस 1? इट विल बी y not equal to 1.
isn't it? अरे भाई y 1 हो गया तो 0 हो जाएगा ना यार, क्वाड्रेटिक खत्म। अब तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें सॉल्व करना है, मुझे नहीं है ना। अब मैं बताऊंगा नहीं इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। सो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सॉल्व करो और बताओ कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आता है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब हुआ आई थिंक 4 टाइम्स y प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 टाइम्स y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू y प्लस 1, y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये है वो इनइक्वालिटी, उसको तुम्हें सॉल्व करना है। और सदगुण का आंसर आया है -1 क्या है ये 0.5। आर यू राइटिंग 0.5 और ,5 क्या है ये 5/3 एंड -1, -1 to 5/3 आ रहा है तुम्हारा। अच्छा, आदित्य का -1 to 3 आ रहा है। भाई यहां पर भी देखो y प्लस 1 कॉमन निकल रहा है, सो देयर इज नो नीड टू स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई, क्या जरूरत है। 4 इंटू y प्लस 1 अगर मैं कॉमन निकाल लूं, सो क्या बचेगा यहां पर, प्रोबेबली माय एन इज रॉन्ग। अरे सदगुण कम ऑन, कॉन्फिडेंस लूज मत कर, कोई बात नहीं, अभी तो जब तक मैंने प्रूव नहीं किया तुम्हारा सही है ना। तो क्या आएगा यहां पर, y प्लस 1 माइनस y प्लस 1 माइनस वॉट, y माइनस 1, इज इट? I am getting a linear, yes, you will get a linear। तभी तो मैं सोच रहा हूं कि इतने लोगों के आंसर रॉन्ग क्यों आ रहे हैं। What type of calculation, क्या कैलकुलेशन करते हो तुम लोग यार। ये देखो यहां से y कैंसिल हो गया, you will get 8, ये देखो ना 1 प्लस 1 2, 8 टाइम्स y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। I know, there would be some mistake, but almost everybody, Shri and everybody, Palash, you have got the correct answer. Correct. No. It is not 1. You are getting a linear fine, but see it is y plus 1. Y plus 1. तो अब इसमें किसी वेवी कर्व की जरूरत नहीं है, तो बहुत आसान हो गया। It is simply y greater than or equal to -1, which means what? Which means y belongs to, now should we include -1? -1 पर क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं? वेट अ मिनट, रुक जाओ, y नॉट इक्वल टू 1 लेके चल रहे थे हम लोग, है ना। y नॉट इक्वल टू 1 लेके चल रहे थे, तो -1 तो रहेगा, -1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं फिलहाल के लिए। क्यों 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज हमने केस बनाया हुआ है y नॉट इक्वल टू 1। फाइनल आंसर में 1 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये तो भाई कौन बताएगा, केस 2। नाउ लेट अस चेक इन केस 2, व्हाट इफ y इक्वल्स टू 1। अगर y इक्वल्स टू 1 हो गया तो होगा क्या, आओ देखते हैं। y इक्वल्स टू 1 रखो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा ये 0, या देखो क्या आएगा -4x, 0 - 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू, हे प्रभु x की वैल्यू तो आप लोग सही निकाल लें, 2 एक 1/2, क्या करते हो यार, इतनी मिस्टेक क्यों करते हो। x इक्वल्स टू हाफ, यस, x इक्वल्स टू हाफ अगर आ रहा है तो सही आ रहा है। अब थोड़ा ठहरो, रुको, सोचो, x इक्वल्स टू हाफ, इज इट अ कॉन्ट्राडिक्शन, इज इट समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल? थिंक एंड टेल मी, सोच के बताओ, क्या ये कुछ ऐसा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है?
नो, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज पॉसिबल, बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग 1. So x equals to half is fair, it is acceptable. This is an acceptable value of x. So the corresponding value of y equal to 1 is also acceptable. तो ये देखो, यहां पे जो मैंने 1 एक्सक्लूड किया है, now we will include 1. थोड़ी देर के लिए 1 को बाहर निकाला था, वेरीफाई कर लिया. So your final answer will be -1 to infinity. ये रहा हमारा फाइनल आंसर. इट इज -1 to infinity. Guys, you make so many mistakes. You know what? तुम लोग कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हो यार. और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम समझते सब कुछ हो. योर ग्रास्पिंग इज वेरी नाइस, बहुत जल्दी तुम समझ जाते हो. बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द क्वेश्चन, माइनस भूल गए, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं की, रूट्स गलत निकाल दी, कुछ भी हो जाता है. अवॉइड दिस, बिकॉज एग्जाम में भी यही हो रहा है. You know everything, when it comes to application हम फेल हो जा रहे हैं. तो क्लास के ड्यूरेशन में, होमवर्क के टाइम पर हर बार challenge yourself that in given time, if the question is already covered in the lectures, illustrations में similar question में solve किए हुए हैं, we have to get the correct answer. We cannot afford to lose a mark because of incorrect application, incorrect calculations. नहीं कर सकते हम, है ना. तो थोड़ा ध्यान रखो, आराम से करो, गलत नहीं होगा यार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्लाइड. सेकेंड क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो. ट्राई क्वेश्चन नंबर 2. चलो क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग ट्राई करो. और सेकेंड क्वेश्चन पे ही आज हम एंड कर देंगे. थर्ड क्वेश्चन नोट कर लेना. और आज तुम्हें, जैसा मैंने कहा कि होमवर्क मिलेगा, इन क्वेश्चंस पर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं. सो आई विल पोस्ट अ होमवर्क ऑन ऐप. उन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना, ठीक है. बिकॉज दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर जेई एज वेल एज एनी एग्जाम, सीईटी कुछ भी मान लो. तो इस टाइप के क्वेश्चंस रेंज वाले आते हैं, ठीक है. तो सेकेंड क्वेश्चन मैं अब सॉल्व नहीं करूंगा भाई. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है और कोशिश करना, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में तो केस बनाने की जरूरत भी तुमको नहीं पड़ेगी. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन डायरेक्टली. रीजन ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल आ ही नहीं रहा है, राइट. सो चलो देखते हैं तुम क्या निकालते हो. I'll wait. आदित्य 4 क्या लिख रहे हो? What is 4? We have to find range. Range will be an interval. What is 4? 4 क्या चीज है? I didn't get it. 4 तो समझा ही नहीं भाई. 4 का क्या मतलब है? माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी. श्री का आंसर है भाई. श्री का आंसर है माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी. सदगुण का आंसर भी सेम है. ओके. Prapti is also getting the same answer. All right. And I think, yes, this is the correct answer. So if you are getting minus infinity to 2, yes. अब खुश होने टाइम है, क्योंकि आंसर हमारा सही आया है. प्लस आई थिंक बाय मिस्टेक तुमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, बट स्क्वायर ब्रैकेट होगा दोनों ही जगहों पर. यस, फाइनली वी गॉट द करेक्ट आंसर. यस. तो जो लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, बिकॉज समवॉट डिफरेंट है ना. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. थर्ड क्वेश्चन में रेंज निकालनी नहीं है. थर्ड क्वेश्चन में रेंज दी हुई है. क्या दिया हुआ है?
रेंज इज y बिलोंग्स टू r। यानी ये कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर है, इस एक्सप्रेशन की रेंज है ऑल रियल नंबर्स। तो फिर k की वैल्यू क्या होगी? देखो एक और y और x के अलावा वहां पर एक और वेरिएबल है। सो आई वॉन्ट यू टू थिंक ओवर इट, हाँ, इसके बारे में सोचो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी बनाया गया है, एडवांस लेवल। यस वेदांत, योर आंसर इज करेक्ट। यज्ञेश, योर आंसर इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी बनाया गया है, एंड आई कैन डिस्कस इफ यू वांट टू कि हमें करना क्या है। यस वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, यस वी विल मेक अ क्वाड्रेटिक, व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या? क्वाड्रेटिक बनाने के बाद क्या करना है? अगर हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 कर रहे हैं केसेस बनाकर, वो भी ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें इनइक्वलिटी को सॉल्व नहीं करना है। तुम्हारे पास उस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन है। जो y की इनइक्वलिटी तुम सॉल्व करते हो ना, उसका सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है उसका? y बिलोंग्स टू r। तो अब तुम्हें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। तुम्हें यह सोचना है, आज क्या बोल रहा है, y बिलोंग्स टू r मीन्स, yes, y belongs to r means y can take all real numbers. So now we have to think for what values of k y can take all real numbers. इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक जो भी y की है वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हिंट तुम्हारे लिए ये है कि अगर तुम्हें याद ना हो तो गो थ्रू दिस पॉइंट अगेन। अंडर व्हाट कंडीशंस अ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर तुम वहां पहुंच जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे एंड यू विल सॉल्व एन एडवांस कैलिबर प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट डे। यहां पे फिनिश करते हैं। होमवर्क जरूर करना और उसकी यस स्लाइड्स आई विल सेंड ऑन द ग्रुप। ओके, सी यू गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑन, क्योंकि हम मिलने वाले हैं नहीं संडे को, तो इंडिपेंडेंस डे एंजॉय करो, लड्डू खाओ, मिलते हैं, ठीक है। नो नो नो, सेकंड का आंसर गलत तनिष। सेकंड का आंसर है -∞ to 2 यूनियन 6 to ∞। चलो बाय बाय।